इलाकी मीडिया, मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। खबर वही जो हो सही। 22 मई को बीदर ब्रिम्स अस्पताल में डॉक्टर पर हमला। बीदर ब्रिम्स अस्पताल में ड्यूटी कर रहे एक डॉक्टर पर हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिम्स अस्पताल में कार्यरत 28 वर्षीय डॉक्टर तुकाराम ने न्यू टाउन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर के अनुसार देर रात करीब 1 बजे वह कैजुअल्टी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में घायल विजय सिंह नामक मरीज का इलाज चल रहा था। तभी मरीज के कुछ रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और इलाज को लेकर डॉक्टर से बहस करने लगे। आरोप है कि आदित्य ताजलापुर, विनोद जाम्बोल, गोविंद बेनकनल्ली, अनिल बेनकनल्ली, महादेव बेनकनल्ली, बालाजी ताजलापुर और पवन जाम्बोल समेत अन्य लोगों ने डॉक्टर के साथ गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा डालते हुए मारपीट की। घटना के दौरान अस्पताल के अन्य मेडिकल स्टाफ ने बीच बचाव कर डॉक्टर की जान बचाई। घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया गया। और MLC ಮಾಡ್ಬಿಡಂದಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳ ಅಂತ MLC ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಟೆಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಜಗಳ ಇದು MLC ಅಂದರೆ MLC ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರಣ ರೀಸನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೇಷಂಟ್ ವಾಕ್ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಂದ್ರು. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಷಂಟ್, ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ? ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? की गंभीरता को देखते हुए न्यू टाउन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए केस दर्ज होने के महज 3 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार बावगी और उनकी टीम ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। MLC ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ MLC ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 5 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಸ BNS ಅಲ್ಲಿ 109 ಮತ್ತು 132 ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ಮತ್ತು 353 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಯಾರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 5 ಜನರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 24/7 ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ASI ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಲಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ಅವರು ಯಾವುದರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಸರ್ ಹೊರಗಿನ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ ನಾವು 5 ಜನ ಲೋಕಲ್ 5 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಹಂಗೇನಾರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ASI ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ 24/7 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಾನೇ ಸುದ್ದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಇದ್ವಿ. शुक्रवार देर रात ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर तुकाराम पर हुए हमले के खिलाफ अस्पताल के डॉक्टरों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिम्स अस्पताल के सामने हुए इस विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया
और हमें चाहिए न्याय जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी मांग की कि डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अस्पतालों में एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे चिकित्सा सेवाएं निलंबित रखेंगे। We are very sad to know this and shocked also. इस केस में जितने भी लोग सामने आए हैं, पुलिस ने 5 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया है। बाकी 2 लोगों को भी एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। जो मेन एक्यूज्ड है उसको भी इन फ्यू आवर्स वो अरेस्ट कर लेंगे करके ऑलरेडी एश्योरेंस भी आया है। होना नहीं चाहिए था इंसिडेंट, समहाउ हुआ है। एंड जनरल पब्लिक से भी ये अपील है कि आप लोग समझिए, ये सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है और जितना नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑब्वियसली कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। जितना बेस्ट पॉसिबल होता है, कोई भी आदमी जानबूझ के किसी को ख़राब करने के लिए, केस ख़राब करने के लिए स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं। आप सब लोगों को पता है, वो आपकी बेहतर होने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी उनके साथ सपोर्ट कीजिए एंड ये ऐसा इंसिडेंट हमारे ब्रिम्स में ना हो करके मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ। वजह क्या है मैडम इंसिडेंट? मैं आई थिंक some जो एक्यूज्ड हैं वो ड्रंक भी थे और ड्रंकन स्टेज में जो है ऑल्टरकेशन हुआ है। उन लोगों ने थोड़ा सा ये जो काम किया है, और बट अगेन आई एम टेलिंग, पुलिस ने ऑलरेडी उन लोगों को अरेस्ट भी किया है। पब्लिक में ये भी चल रहा है कि मैडम यहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहे बोलकर ब्रिम्स में, उसके लिए भी पब्लिक ज़रा नाराज़ बता रही है। सी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के अलावा जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट रहते हैं। हमारे पास जैसे आप लोगों को पता है, ब्रिम्स में अभी पीजी स्टार्ट हुआ है, तो जूनियर रेजिडेंट जो है धीरे धीरे वो लोग बन रहे हैं। तो अब एक्सपीरियंस या ना एक्सपीरियंस्ड वाली ऐसी बात नहीं है। आई डोंट थिंक हमारे ज़िले में ब्रिम्स से ज़्यादा कैपेबल डॉक्टर्स आपको कहीं और मिलेंगे। वो लोग सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं करके, सभी लोग बहुत कैपेबल हैं। और जो नए बच्चे JRs आए हैं करके, वो भी काफ़ी कैपेबल। सांसद सागर खंडरे और बीदर के इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंडरे ने डॉक्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कर्नाटक में डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के दूसरे स्टाफ के साथ मारपीट, गाली गलौज या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। राज्य सरकार ने इस कानून को और सख्त बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में डॉक्टर या किसी हेल्थ वर्कर पर हमला करता है, धमकी देता है या बदतमीजी करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। यह नॉन बेलेबल अपराध है, यानी आसानी से जमानत नहीं मिलती। ऐसे मामलों में कम से कम 3 साल तक की जेल हो सकती है और 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर हमले के दौरान अस्पताल की मशीनें, ICU का सामान, वेंटिलेटर, दस्तावेज या बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आरोपी से नुकसान की असली कीमत का 2 गुना पैसा वसूला जाता है। पैसा नहीं देने पर सरकार उसकी संपत्ति जब्त करके रकम वसूल सकती है। कर्नाटक सरकार ने सभी अस्पतालों में चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी किया है, जिन पर कन्नड़ और अंग्रेजी में इन सख्त कानूनों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अस्पतालों में वायलेंस प्रिवेंशन सेल भी बनाए गए हैं, ताकि किसी भी झगड़े या हमले की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दी जा सके। अगर डॉक्टर या अस्पताल स्टाफ के साथ ऐसा कोई मामला होता है, तो अस्पताल प्रशासन या पीड़ित व्यक्ति तुरंत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। पुलिस कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकेयर सर्विसेज पर्सनल एक्ट और BNS कानून के तहत कार्रवाई करती है। अगर डॉक्टर की लापरवाही, गलत इलाज या बदसलूकी की वजह से मरीज को परेशानी होती है, तो मरीज और उसके परिवार के पास कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होता है।
इलाज में लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंस होने पर क्या कर सकते हैं? अगर डॉक्टर की गलती, गलत दवा, इलाज में देरी या लापरवाही की वजह से मरीज की हालत खराब हो जाए या मौत हो जाए तो इन तरीकों से कार्रवाई की जा सकती है। 8. मेडिकल काउंसिल में शिकायत। आप कर्नाटका मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) में शिकायत कर सकते हैं। अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। 2. कंज्यूमर कोर्ट में केस डॉक्टर या अस्पताल की लापरवाही से हुए शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जा सकता है। कोर्ट डॉक्टर या अस्पताल पर भारी मुआवजा कॉम्पेंसेशन लगा सकती है। 3. पुलिस में क्रिमिनल केस। अगर लापरवाही बहुत गंभीर हो तो पुलिस में BNS की धारा 106 के तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता। पहले सरकारी डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड जांच करती है कि मामला सच में गंभीर लापरवाही का है या नहीं। अगर डॉक्टर बदतमीजी, गाली गलौज या धमकी दे तो क्या करे? अगर डॉक्टर मरीज या उसके परिवार के साथ गलत व्यवहार करे, गाली दे या धमकाए तो ये कदम उठाए जा सकते हैं। 8. अस्पताल प्रशासन को शिकायत दें। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट या ग्रीवेंस सेल में लिखित शिकायत करें। अस्पताल डॉक्टर को सस्पेंड या नौकरी से निकाल सकता है। 2. मेडिकल काउंसिल में शिकायत। मरीज के साथ बदसलूकी को प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। मेडिकल काउंसिल डॉक्टर को वार्निंग दे सकती है या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। 3. पुलिस में FIR दर्ज करे। गाली गलौज और धमकी के मामले में पुलिस शिकायत की जा सकती है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, महिलाओं के लिए खास सुरक्षा। अगर किसी महिला मरीज के साथ ऐसी बदसलूकी हो जिससे उसकी इज्जत या सम्मान को ठेस पहुंचे तो BNS धारा 69 के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। सबूत संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई मामला हो तो ये चीजें जरूर सुरक्षित रखें। अस्पताल के बिल, प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट्स अगर संभव हो तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, वहां मौजूद गवाहों के नाम और बयान, अस्पताल से CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की लिखित मांग करें।